السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری بہت خاص ہے جو کہ حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کشمیر سے پنجاب آئے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد 17ویں صدی عیسوی میں مشبر اسلام ہوئے۔ تقریباً اسی زمانے میں کشمیر سے ترک وطن کر کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ آپ کے خاندان کے مورث اعلیٰ نے سیالکوٹ کو اپنا وطن قرار دیا۔ آپ کا خاندان کشمیر کے معزز پنڈتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ والد بزرگوار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا مکرم اخلاق، دیندار اور زہد تقویٰ سے آراستہ تھے۔ آپ کے والد بزرگوار اسی برس کی عمر میں بصارت کھو چکے تھے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی۔ وہ کسی ایسے افسر کے ملازم تھے جس کی کمائی میں رشوت کا شبہ ممکن تھا، حالانکہ خود ان کی تنخواہ ہر قسم کے اشتباہ سے پاک تھی۔ پھر بھی آپ کی والدہ اس روپے کی خریدی ہوئی کوئی چیز اسے اپنے استعمال میں نہ لاتی تھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ رموز بے خودی میں اپنے والد کی خدا ترسی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک سائل سوال کرتا ہوا ہمارے دروازے پر آیا۔ مجھے اس کے اصرار سوال پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے مارا۔ میرے مارنے پر جو کچھ وہ مانگ کر لایا تھا وہ گر پڑا۔ والد بزرگوار نے دیکھا تو بے حد مغموم ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ فرمانے لگے، جب امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں جمع ہوں گے، غازی، شہید، زاہد، عابد، عالم، حافظ سب موجود ہوں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے دریافت فرمائیں گے کہ ہم نے ایک بندہ مسلم کو تیری فرزندگی اور نگہداشت میں دیا، تو اسے بھی آدمی نہ بنا سکا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر بیٹے کو مخاطب کر کے جو کچھ کہا ہے کس قدر مؤثر اور دلدوز ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد نے ایک شب خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت سفید کبوتر فضائے آسمانی میں پرواز کر رہا ہے۔ پھر وہ کبوتر اترا اور آپ کے والد کی گود میں آ بیٹھا۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ میرا پیدا ہونے والا بچہ نیک بخت ہوگا اور اسلام کی نمایاں خدمت انجام دے گا۔ ولادت و سعادت۔ الغرض ایسے مردان خدا کی آغوش میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 24 ذی الحج 1289 بمطابق 22 فروری 1873 کو تولد ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے محمد اقبال نام تجویز کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے خاص توجہ و اہتمام سے آپ کی ابتدائی تربیت کی۔ اس عفت مآب خاتون کی تربیت آپ کا نتیجہ آج دنیا کے سامنے ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت گھر پر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدت تک میں نے مکتب میں پڑھا، پھر اسکول میں داخل ہوئے اور 5ویں جماعت میں نمایاں کامیابی کے صلے میں وظیفہ اور میڈل درجات میں مدرسوں سے ممتاز رہے۔ 8ویں جماعت کے امتحان میں بھی وظیفہ حاصل کیا۔ انٹر کا امتحان بھی امتیازی درجے سے پاس کیا، سرکاری وظیفہ حقدار ٹھہرا۔ علامہ محمد اقبال کی عمر 11 یا 12 برس تھی۔ آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن آپ کو اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ماسٹر صاحب نے دیر آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، اقبال دیر ہی میں آتا ہے۔ اس بلند ستارہ کو شمس العلماء مولوی سید میر حسن مرحوم کی دور اندیش نظروں نے شروع ہی سے جان لیا تھا اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی سے ان کی خاص توجہ کے مرکز بنے تھے۔ آپ
चौथी जमात में तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन आपके वालिद मरहूम आपको लेकर मौलवी सैयद मीर हसन के पास जवान के ख़ास अहबाब में थे और फरमाइश की कि आप इस बजाय स्कूल की तालीम के इस्लामी उलूम का दर्स दिया करें। मौलवी सैयद मीर हसन ने तबस्सुम फरमाया और जवाब दिया, ये बच्चा मस्जिद की तालीम के लिए नहीं, ये मदरसा ही में पढ़ेगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त एफ.ए. की तालीम ख़त्म करने तक मौलवी सैयद मीर हसन की तालीम और तरबियत से मुस्तफ़ीद होते रहे। मौलवी सैयद मीर हसन शागिर्द के होशमंदी और फरासत को बखूबी जानते थे। चनाचे उन्होंने भी इस अरसे में अरबी फ़ारसी के सिवा इस्लामियात हिकमत की मुकम्मल तालीम देकर आपके ज़र खालिस को कंदन फारिस बना दिया, जिसकी दरख्शानी बहुत जल्द सारे आलम की निगाहों को खैर कर दिया। अल्लामा इकबाल ऐसे शफीक बेमिसल उस्ताद को कभी ना भूले और विलायत गए तो उनकी याद की तड़प साथ थी। हिंदुस्तान आए तो मौलवी सैयद मीर हसन की अकीदत मोहब्बत उनके दिल को गरमाए रहती थी। आपने विलायत जाने से कबल दुआ की थी। अल्लामा इकबाल को शुरू से ही तहसील इल्म का शौक़ था। इल्मी तरक्की के साथ ये ज़ौक़ भी बढ़ता जाता था। चनाचे आपने 1905 में विलायत का सफ़र इख्तियार किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा इखलाक की डिग्री हासिल की। बाद मॉन्यूस यूनिवर्सिटी जर्मनी से फ़लसफ़ा ईरान पर एक तहक़ीक़ी आलमाना मकाला के सिले में PhD की डिग्री पाई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वलायत में इसी 3 साला क़याम के दौरान बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी पास किया। लंदन के स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में भी सनद हासिल की। जब आपका मुकाला ईरान का फ़लसफ़ा माल तब्बियात इंग्लिस्तान में शाया हुआ तो फ़िज़लाए यूरोप पर आपकी काबिलियत का सिक्का बैठ गया। माहिरीन फ़न ने इस किताब पर बहुत उम्दा रिव्यू लिखे और इस मकबूलियत का नतीजा ये निकला कि आपको लेक्चरर देने के लिए मदऊ किया गया। चनाचे आपने इस्लाम पर 6 लेक्चर दिए जिन्होंने आपकी मज़हबी फ़लसफ़ियाना मालूमात की धूम मचा दी। इसी ज़माने में प्रोफेसर लैंड ने 6 माह की रुखसत ली तो लंदन यूनिवर्सिटी ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को उस मुद्दत के लिए अरबी प्रोफेसर मुकर्रर किया। वतन वापसी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 3 साल तक यूरोप में रहकर वापस लौटे तो उस वक्त आपकी उम्र 35 साल थी। अहले अल्लाह से इरादत और मर्दान खुदा से अकीदत आप में बदरजा गायत पाई जाती थी। चनाचे जिस तरह जाते वक्त आप महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर हाज़िरी देकर आज़म सफ़र हुए थे, इसी तरह विलायत से वापसी पर अव्वल आप दिल्ली आए और आस्ताना शरीफ पर खाक बूस होने के बाद लाहौर रवाना हुए। आप 27 जुलाई 1908 को शाम के वक्त लाहौर पहुँचे थे। स्टेशन पर एज़ा अहबाब के अलावा कदर शनासों का एक अनपा कसीर जमा था। आपके साथ में एक शानदार पार्टी तरतीब दी गई थी जिसमें आपका शायान और शान एहतमाम किए गए थे। एक दिन क़याम के बाद आप अपने शहर सियालकोट चले गए। सफ़र यूरोप ने मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तशनगी इल्म को ज़रूर कदरे सराब किया, लेकिन देखने वाले को हैरत थी कि मगरिब ज़दगी का कोई असर उन पर क्यों नजर नहीं आता। सच ये है कि जिसकी तरबियत अपाने नजर नहीं की हो और नुमाइशी बातों और फरेबकारियों से कब मुतासिर हो सकता है। इकबाल का हुस्न इखलाक। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह निहायत उम्दा इखलाक से मुतफ़िज़ थे, निहायत खलीक और मिलनसार थे। आपसे मुलाकात के लिए आने वालों को इंतज़ार की ज़हमत उठाना न पड़ती थी। आप आखिरी उम्र में अगरचे दमे के मरीज़ थे मगर फिर भी हर मुलाकात करने वाले से निहायत खंदा पेशानी से मुस्कुरा कर मुलाकात करते थे। आपके दोस्त कहते हैं हमने आपको हर वक्त मुस्कुराते देखा, आपके चेहरे पर कभी गुस्सा नागवारी के आसार हमने नहीं देखे। आप ज़बत तहम्मुल का मुज़ाहरा करते थे और किसी भी नागवार बात या हरकत पर इंतहाई ज़बत का मुज़ाहरा
कोई आपकी खुद की पहचान थी और आप उसे पसंद भी करते थे। राय हक जायज़ सदक से कभी पीछे ना हटे। आपकी शख्सियत तस्लीम रज़ा का बेहतरीन नमूना थी। आप अगरचे शोहरत बुलंदियों पर थे मगर फिर भी तकब्बुर, हया, जा पसंदी और हवस दुनिया का कोई काम नशा आपकी शख्सियत में नहीं पाया जाता था। आप मुतवाज़ा थे और असगारी आपकी तबीयत का खासा थी। आपको नमू नुमाइश से सख्त नफरत थी, इसलिए नमू नुमाइश से गुरेज करते थे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में अजज असगारी सरमाया था। आप इंतहाई सादा मिजाज के हामिल थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी साथ के लिए किसी शय की ज़रूरत ना थी। हर शय से वो बेनियाज थे, कनायत पसंद थे और तवक्कुल आपका खासा था। बावजूद कि आपके मिजाज में नफासत पसंदी बदरचा तम मौजूद थी, लतीफ़ खुश जायका ग़ज़ाएँ मरगूब थी, मगर आपके मुलाज़िम खास अली बख्श ये बयान फरमाते हैं कि आप सादा खाना ही खाते थे और सादगी में रहना पसंद फरमाते थे। अल्लामा इकबाल का एक दरवेश से मुलाकात का अहवाल। एक मरतबा एक दरवेश अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। आपने उससे दुआ की दरख्वास्त की। उसने कहा, दौलत चाहते हो? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कहा, मैं दरवेश हूँ, दौलत की हवस नहीं। उसने कहा, इज्जत जा मांगते हो? अल्लामा इकबाल ने कहा, वो भी खुदा ने काफ़ी बख्श दी है। दरवेश ने पूछा, तो क्या खुदा से मिलना चाहते हो? अल्लामा ने फरमाया, साईं जी क्या कह रहे हो? मैं बंदा, वो खुदा, बंदा खुदा से क्यों कर मिल सकता है? कतरा दरिया में मिल जाए तो कतरा नहीं रहता। मैं कतरे की हैसियत कायम रहकर दरिया बनना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल की ये बात सुनकर दरवेश पर खास कैफियत तारी हो गई। कहने लगे, जैसा सुना था वैसा पाया, तू तो खुद आगाह राज है, तुझे किसी की दुआ की क्या ज़रूरत है। सुबह के 5:15 बजे का वक्त था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का देरीना मुलाज़िम अली बख्श जिस्म दबा रहा था। आपने दिल पर हाथ रखा और अब दर्द आ गया है। एक आँख खींची और तबस्सुम पर लब रूह जाफरी को सुपुर्द कर दी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर सकरात मौत के वक्त कोई कैफियत तारी न हुई। आखिर तक कामिल होश में रहे। इंतकाल के वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 20 साल से 65 साल 1 महीना 29 हिजरी सन से 67 साल 1 महीना 26 दिन की थी। दफातर, अदालतें, कॉलेज, तमाम इस्लामी इदराज बंद कर दिए गए और सुबह से शताब्दी वाक़या हुआ। जावेद मंजिल पर सोमवारी के लिए आने शुरू हो गए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम पर पहुँची है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो बनाते रहें। इसी के साथ अल्लाह आपका हामी और नसर